Good morning, student of class 10th. From few classes, we are discussing the chapter How do organisms reproduce. Last class, we complete the topic Internal reproduction in animal or internal fertilization. Today, we start the next topic in a human being, how sexual reproduction in animal takes place. मीन्स एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका प्रोसेस क्या है. And we already know that male sex cell is called sperm and female sex cell is called ovum. And when they copulate each other, when they fuse each other, they combine the new structure that we call zygote. Today's topic is that how sexual reproduction takes place. How sexual reproduction in animal takes place. First, we know that male produces male gamete. Male produces male gamete that we called sperm. And sperm is a small cell with long tail. Sperm is a small cell. Sperm is a small single cell with long tail. Sperm is a small cell with long tail, and this tail provide movement. This tail provide movement. Okay, and next one is the female parent produces female gamete. This is the male gamete, and female parent produces female gametes, or that called female sex cells. Female sex cells that we called ova or eggs. And ovum is much bigger cell than that of the sperm. Ova size is bigger than sperm size. And the presence of cytoplasm in ova greater than cytoplasm in sperm. Due to their structure, the presence of cytoplasm is greater than that of the sperm. Cytoplasm, nucleus, this is head part, this is middle piece, and this is tail part, and this is present in cytoplasm, nucleus, which contains genetic materials, and outer is the and the sperm enters into the ovum. This is ovum. The sperm into the ovum and fuses with it to form new cell that we call zygote. This is ये इंटर कर रहा है इसमें. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा.
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट वी कॉल्ड जायगोट। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। इसको कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। So the sperm enters into the ovum and fuses with it to form a new cell that we call zygote. This process is called, and with ये जो जिस प्रोसेस से ये स्ट्रक्चर बना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर द passing from the different phases, this zygote is developed into the newborn baby. And this zygote, the zygote then divide again and again. This zygote, it divide means क्या होता है इसमें, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के थ्रू ये जायगोट लास्ट में जा कर के किस चीज़ में फॉर्म होता है, न्यू बेबी। तो दिस जायगोट डिवाइड्स अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल and then ultimately zygote grows and develop to form a newborn baby. तो after cell division जब ये जायगोट 100 सेल का हो जाएगा, जब इस जायगोट में सेल डिवीज़न के बाद 1 सेल to 100 सेल तक डिवीज़न हो जाएगा, तो इस 100 सेल के डिवीज़न को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, इस 100 सेल के डिवीज़न को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एंड फ्रॉम एम्ब्रियो, फ्रॉम 100 सेल टू टिल द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन दैट वी कॉल्ड फीटस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि मेल क्या कंटेन करता है एंड फीमेल क्या कंटेन करता है। फीमेल कंटेन मेल गैमेट दैट वी कॉल्ड स्पर्म, फीमेल contain female gamete that we called ova, and ये स्पर्म मेल बॉडी में कहाँ रहता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है, दैट वी कॉल्ड टेस्टिस। एंड इसमें जो ओवा का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ रहता है, ओवरीज। इसमें ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओवरीज में। And ova size is greater than that of the sperm size due to presence of large number of cytoplasm, large amount of cytoplasm. ठीक है, and this is the process in which the sperm try to enter into the ovum outer layer and try to break the outer layer of the egg that we called corona radiata and zona pellucida, and the outer layer of the sperm contain the enzyme that we break the egg's outer layer that we called hyaluronidase. These are the enzymes which help to break the layers of the eggs and sperm. And after fertilization, this structure is formed in which the zygote is formed. Zygote is a single cell structure, and after multiple cell division which is occur in the zygote, this cell division goes into the 100 cell, and till the 100 cell this structure is called embryo and after 100 cell till the birth of baby that we called fetus. So this topic is complete, and next topic is the puberty. What is the meaning of puberty? Puberty is the phase in which there is the start the development of the sexual cells, sexual reproductive cells, and that process many changes occur in the physical or mental appearance of the boys and girls that we called puberty. And puberty age, puberty in male is about 13 to 14 years, and puberty in female is about 10 to 12 years. Means female mature earlier than the male. Means
फीमेल जो होती है वो मैच्योर कर जाती है अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल. 1 to 2, there is a difference of 1 to 2 year maturation phase. And in this phase that many changes like that testis which is present in the male body and ovaries which is present in the female body. Testes start producing sperm and ovaries start producing ova or eggs. Means at puberty this sexual organ produces, मतलब ये जो puberty के टाइम में ये जो ऑर्गन होते हैं इसमें ऑलरेडी पहले से स्पर्म और ओवरीज स्टोर रहते हैं, लेकिन इन द इमेच्योर फॉर्म. किस में रहते हैं? इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं. लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है? आफ्टर प्यूबर्टी ये जो स्ट्रक्चर है एक्स और ओवा का ये मैच्योर होने लगता है, मतलब मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है. तो हम लोग प्यूबर्टी को कह सकते हैं मैच्योरेशन स्टेज ऑफ स्पर्म एंड ओवा. प्यूबर्टी को क्या कह सकते हैं? मैच्योरेशन फेज या स्टेज ऑफ स्पर्म एंड ओवा. तो टेस्टिस क्या चीज का प्रोडक्शन करने लगता है? स्पर्म का. ये तो हुआ गैमेट का फॉर्मेशन. लेकिन ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑल्सो टेस्टिस प्रोड्यूस ए हार्मोन इन द मेल दैट वी कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. मेल जो होता है इन प्यूबर्टी टेस्टिस ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग testosterone that we call male sex hormone. टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? मेल सेक्स हार्मोन. तो एट दिस स्टेज फीमेल ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट वी कॉल्ड ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Male produces one hormone that we call testosterone and female produces two hormones that we call estrogen and progesterone. During puberty मतलब प्यूबर्टी के आते आते ये हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में होने लगता है, जिसकी वजह से मेनी चेंजेस, मतलब इस दो हार्मोन की वजह से मेनी चेंजेस अकर इन द फिजिकल एंड मेंटल appearance. Many changes occurs in the body. ओके, तो फीमेल में भी हो जाएगा many changes स्टार्ट हो जाएगा. and these changes is physical as well as mental. physical plus mental, नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखेगा लेकिन मेंटल अपीयरेंस नहीं दिखेगा. ये मेंटल थिंकिंग चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग. मेंटल जो होता है वो आप प्यूबर्टी के दौरान साइकोलॉजिकल थिंकिंग में परिवर्तन आ जाता है. मीन्स सोचने की शक्ति पहले की तुलना में बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्यूबर्टी. इसमें और देखते हैं कि वेरियस स्टेजेस दैट अकर इन द प्यूबर्टी आर द हेयर ग्रोज अंडर armpits and in pubic region between the thighs. Hair also grows on the upper part of the body like chest. ये सारे डेवलपमेंट्स हैं जो मेल बॉडी में होते हैं. एंड गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें कि वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द मेंसुरेशन स्टार्ट. मेंसुरेशन मीन्स मंथली पीरियड जिसमें कहते हैं. जिसमें होता क्या है कि जो एग्स का फॉर्मेशन होता है वो 28 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वही बॉडी के बाहर आते हैं ब्लड के फॉर्म में. ये आगे बताऊंगी, टॉपिक आएगा तो ये आपका टॉपिक
कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी का। एंड मेन थिंग इसमें देखना क्या है प्यूबर्टी में, कि आपको एज पता होना चाहिए, मतलब किस एज में प्यूबर्टी होता है और क्या क्या हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। चेंजेस वगैरह कॉमन है, वो कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो कि खुद समझ में आ जाता है। तो मेन इसका एज पता होना चाहिए, मतलब प्यूबर्टी का एज क्या है, और दो हार्मोन्स क्या क्या बनते हैं वो हार्मोन्स पता होने चाहिए। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और क्या एज होता है। Human reproductive, the reproductive system in human being become functional at a definite stage that we call puberty. प्यूबर्टी वही हुआ कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है काम करना, अपना स्टार्ट कर देता है काम करना और फंक्शनल हो जाता है। मतलब पहले ऑलरेडी एग्स और ओवम बॉडी में होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब इमेच्योर स्टेज में होते हैं। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी दीज आर द फंक्शनल, मतलब स्टार्ट फंक्शनिंग कर देता है, सो दैट वी कॉल प्यूबर्टी। एंड प्यूबर्टी इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दिस प्रोसेस, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बिकम फंक्शनल। क्या हो जाता है, फंक्शनल। एंड दिस एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जो मैंने बताया कि मेल में 13 to 14 होता है और फीमेल में 10 to 12 होता है। तो ये आपका प्यूबर्टी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोनों ह्यूमन बीइंग का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।